اے لوگو، میری بات سنو اور جلدبازی سے کام مت لو، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں جو تمہارا مجھ پر حق ہے اور تم پر حجت تمام کر دوں۔ بس اگر تم انصاف سے کام لو تو فلاح پا سکتے ہو۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اسے ڈھونڈ لیا؟ سب جنگ میں مصروف ہیں، کوئی بھی ڈھونڈنے کو راضی نہیں۔ اگر وہ مارا گیا تو؟ کیا تمہارے باپ کا امانت دار نہیں تھا؟ کاتب اعظم کے جس امانت دار کو میں جانتا ہوں وہ حسین سے جنگ نہیں کر سکتا۔ مجھے پہچان گئے ہو؟ وہ ہمارا بڑا تھا اور امیر شام کا قابل اعتماد۔ قابل اعتماد تھا جو اس کے ساتھ ایسا کیا؟ مجھے خبر ملی تھی تو میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ جب شام سے فرار ہوئے تو زندگی گزارنے کے لیے بھیڑ بکریاں چرانے کا انتخاب کیا اور شناخت چھپانے کے لیے خود کو دیہاتی بتانے لگے۔ ہر وقت ہمیں سپاہیوں کا خوف رہتا تھا جو خلیفہ کے حکم پر دن رات میرے باپ کی کھوج میں تھے۔ کوفہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس سے پہلے کہ کوفہ کے لیے روانہ ہوتا ابن سبیق کا ذکر کیا۔ دشاہ نے کاتب اعظم مجھے دیا اور کہا کہ اس کے پاس بہت اہم امانت ہے۔ امانت لوٹانے کے لیے آج کا دن اچھا نہیں۔ والد کی موت کے بعد میں کوفہ کی طرف گیا ابن سبیق کی تلاش میں۔ وہاں سنا کہ وہ جنگ کے لیے کربلا آیا ہے۔ اس کی موت کے ڈر سے امانت لینے یہاں آ گیا۔ اب یہاں پر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے باپ کا امانت دار اگر آیا بھی ہوگا تو اب تک بھاگ چکا ہوگا۔ کہاں؟ نہیں جانتا۔ تو کیا تم اس کے شاگرد نہیں رہے؟ تانا دے رہے ہو؟ بھاگ جانا بزدلوں کا کام ہے۔ میرا باپ بزدل نہیں تھا۔ وہ اپنے عقیدے کی خاطر بھاگا۔ تم جانتے ہی کیا ہو اس کے بارے میں۔ میری زندگی اس کے وجود اور اس کی نگاہ پر منحصر تھی۔ اس کا مجھ پر سایہ میرے دل کے سکون کا باعث تھا۔ میرا سب کچھ ہی مجھ سے چھین لیا۔ نہ جانے وہ کون حرام خور تھا جس نے امیر شام کے سامنے راز فاش کر دیا۔ کون سا راز؟ وہی جس سے پورا شام اس کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مشکل ہے، دل کسی اور طرف ہو اور قلم کسی اور طرف۔ جان گیا تھا کہ اس کا دل اولاد علی کی طرف ہے۔ نہ جانے کب اور کیسے وہ امیر شام کو چھوڑ کر علی کا پیروکار بن گیا۔ بہرے ہو مگر اندھے تو نہیں؟ وہ بیچارہ مر جائے گا۔ مانا تمہارے کان نہیں سنتے مگر آنکھیں تو دیکھتی ہے نا۔ وہ بھوک سے مر جائے گا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ کھانے کو دوں، شاید اس حسین کے جانے سال میں کچھ ہمت آ جائے۔ حسین کے طرفدار ہو؟ کیا لشکر اکٹھا کیا ہے ابن زیاد نے؟ اگر اس کی طرفدار ہوتی تو اس کے دشمنوں کی خدمت گزار نہ ہوتی۔ اس کی دیکھ بھال نہیں کرنے دے گا۔ سنا ہے ابن زیاد کی طرف سے آیا ہو۔ تم میری باتوں کو بھول جاؤ۔ جو بھی کہا تمہیں ایک چرواہا سمجھ کر کہا۔ اب جو بھیڑیے کی کھال پہن لی ہے تم نے تو جان لو میں بھی تمہاری ہم عقیدہ ہوں۔ اپنے لیے نئی مصیبت کھڑی نہ کرو۔ مصیبتیں تو آپ کے یہاں سے ہی جنم لیتی ہیں۔
اگر اس نے میری طرفداری کے بارے میں کچھ کہا تو گواہی دیں آپ، میں خود کہہ رہی ہوں کہ حسین کے ساتھ نہیں ہوں میں۔ ادھر دو مجھے، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ اے اللہ، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تو جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے۔ تم اپنے باپ جیسے دکھتے ہو، چہرہ اور آواز ہو بہو اس جیسی ہے۔ جب سے میں نے سنا ہے کہ چرواہے ہو، تمہاری دانائی کی وجہ سے مجھے یقین نہیں آیا۔ وہ سمندر تھا اور میں ساحل، اس کے علم کی موجیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ میرا اندازہ تھا کہ اس کا یہ علم اور یقین اس کے بیٹے کو پیروکار حسین بنائے گا۔ فی الحال تو اس کا شاگرد خلیفہ کی نوکری کر رہا ہے۔ یہ تلخ کلامی بھی کیا کاتب اعظم سے وراثت میں ملی ہے؟ مجھے سکھایا ہے کہ فضول بات کا جواب ضرور دوں۔ حسین کی ہمراہی فضول بات ہے؟ جب تمہیں میری ذاتی زندگی کا علم ہی نہیں ہے تو ہاں۔ وہ لوگ اپنی زندگی کا ظاہر اور باطن سب ایک کر چکے۔ میری ماں کی سانسیں میرے وجود کے ساتھ جڑی ہے۔ تو پھر تم یہاں کیوں ہو؟ امانت کے لیے جو ابن سبیق کے پاس ہے، اسی سے میں اپنی ماں کے لیے کچھ کر پاؤں گا۔ وہ امانت سکے ہیں؟ یقیناً۔ جاتے ہوئے ان سکوں کو میری ماں کے مصارف زندگی قرار دیا۔ اس بوڑھی اور بیمار کا علاج اس کے بغیر ممکن ہے؟ تم میں اپنے باپ والی بات نہیں۔ اس نے ایمان کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ میرا اور میری ماں کا اسی ایمان کی وجہ سے آج یہ حال ہے۔ نہیں چاہتا کہ اس جیسا بنوں اور میری ماں بے سہارا ہو جائے۔ تمہارے باپ نے علی کو نہیں گنوایا۔ علی کی محبت میں نے اپنے باپ سے ہی لی ہے۔ میرا دل مضطرب ہے کہ ان بدکاروں نے حسین کا راستہ روکا۔ میرے لبوں پر ان کی فتح کی دعا ہے۔ لیکن تمہارے ہاتھ باپ کی امانت واپس لینے میں۔ کم سے کم حسین کے دشمنوں کے لیے کام نہیں کرتا میں۔ کاتبوں کے خیمے میں بیٹھا ہوں تاکہ حسین کی آواز کو آنے والی نسلوں تک پہنچاؤں بغیر کسی کمی بیشی کے۔ لگتا ہے کہ یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔ میری بات یاد رکھو، معشوق جب مدد کے لیے پکارا کرتا ہے، عاشق کھڑے ہو کر تماشا نہیں دیکھتا۔ کب کہاں میں عاشق ہوں اور حسین میرے معشوق۔ حجت تمام ہو گئی ابو نعمان۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ علی ابن ابی طالب ہر جنگ سے پہلے حجت تمام کیا کرتے تھے، پھر کسی کے لیے بیچ کا راستہ نہیں بچتا تھا۔ زندگی دشمن علی سے مانگیں اور دل کو علی سے جوڑیں، یا علی کے خلاف یا علی کے ساتھ۔ ہر کسی کا وظیفہ اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ اگر میرا ہاتھ سالم ہوتا تو اس مصیبت گاہ میں چل پھر نہ رہا ہوتا۔ میں استطاعت نہیں رکھتا، نہ تو میرے ہاتھ میں تلوار اٹھانے کی طاقت ہے نہ قلم۔ بچکانہ سی دلیل ہے۔ جب حق کو پہچان لیا تو اپنی جان کو حق کی ڈھال بنا دینا چاہیے، باقی سب قادر مطلق کے حوالے۔ اور تم خود؟ حق نے میرے لیے ماں کا انتخاب کیا۔ قادر مطلق تمہاری ماں کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ فی الحال مجھے باپ کی وراثت اس تک پہنچانی ہے۔ مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ ہم وہی تھے جو دعا کرتے تھے کہ اے کاش حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے تاکہ ہمیں اس طرح کے سخت امتحان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ ابن سبیق کو ڈھونڈنے میدان میں جا رہا ہوں۔ صبر کرو صبر، تم خود تو
किसी सूरत उसे ढूंढने मैदान में नहीं जा सकते। खलीफा को तुम्हारे खानदान से ये दुश्मनी विरासत में मिली है। हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं। मेरे जैसे बहुत हैं इस लश्कर में जो तुम्हारे चेहरे के खदोखाल से तुम्हारे नसब को यकीनन पहचान लेंगे। सवार अभी तक यहीं है। सुना था उमर इब्ने साद ने उसे अपने खेमे में बुलवाया है। जंग की क्या खबर है? गर्मी, खून और तलवार। एक कासिद हुसैन की तरफ से आया और नमाज की मोहलत मांगी। मोहलत मिली? तय हुआ है कुछ देर के लिए जंग रोकी जाए। मेरा ख्याल है कि हुसैन को नमाज की मोहलत नहीं मिलेगी। दोनों मुसलमान हैं। शाम से आने वाला लश्कर अली और औलाद अली को बेदीन समझता है। उन्होंने खलीफा मरहूम के इस्लाम में आंखें खोली हैं। अली पर लान और तान उनका विर्द ज़बान है। लश्कर में इस बात पर बहस शुरू हुई है कि हुसैन की नमाज से शामियों के दिल मुतज़्ज़ल ना हो जाएं। सही कहते थे, नमाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। जिहाद में सहूलतें नहीं दी जाती, बस हमला करो और फतह करो। क्या फतह करना है? गारत शुदा ईमान को और उस खून को जो खलीफा पर हमला आवर हुआ। फतेह खून के लिए जिहाद की नहीं, बल्कि संगदिली और हवस की नजर चाहिए। उस तरफ जमात खड़ी हो रही है। अगर जमात जितने लोग रह गए हों, फजर की जमात से तो कम ही हैं, क्योंकि बाकी लोग खैमे में इकट्ठे हैं। लाशों के खैमे का कह रहे हो? हुसैन ने अब्बास के साथ मिलकर तमाम लाशें मैदान से उठा ली, सब के सब एक खैमे में ले आए। अब्बास मैदान में आया? कई बार वो महासरा तोड़कर लाशों को वापस लाया, लेकिन अभी तक जंग के लिए मैदान में नहीं आया। फिर भी थोड़े लोग नहीं मरे हमारे लश्कर के। यकीनन हुसैन ने अभी तक उसे जंग की इजाजत नहीं दी। अभी तक बनी हाशिम में से कोई भी जंग के मैदान में नहीं उतरा है। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। तुमने तो कहा था कि नमाज की मोहलत दी थी। हाँ, दी थी। फिर वो लोग इस कदर तीर क्यों बरसा रहे हैं? नमाज नहीं पढ़ने दी। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी सिर्फ इसलिए ताकि उनके इमाम नमाज पढ़ लें। तीरों को अपने सीनों पर लेते हैं ताकि हुसैन को कोई तीर न लगे। तारीख गवाह है कि किसी को ऐसे असहाब नहीं मिले जिस तरह से ये अपने इमाम की हिफाजत कर रहे हैं। ऐसा तो हमने ग़ज़वात पैगंबर में भी नहीं सुना कि आता हुआ तीर देखें और खुद सामने आ जाएं। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी जंग इतनी जालिमाना और गैर मसावी नहीं देखी। नमाज की मोहलत देना जंग के कानून में नहीं। लश्कर इस्लाम ने कोई गलती नहीं की। वादा खिलाफी भी जंग का कानून नहीं। जब सरदार ने नमाज की मोहलत दी थी, इसका मतलब जंग में वक्फा, मतलब तीरों को भी तरकश में रहना है। न तुम जंगी कानून और हिकमत अमली से वाकिफ हो, ना मैं एक कातिब हूं और तुम भी। तुम यकीनन चरवाए हो ना। वादा खिलाफी को सब जानते हैं। सरदार ने गलती की। ये दीन के दुश्मन नमाज के बारे में क्या जानते हैं? ये मलून लोग अपने मुलजिम की कौम है। इबादत में वार करना इनकी आदत है।
तुम्हारी आवाज अबू शुजा तक पहुंच गई तो वो कयामत बर्पा कर देगा। अपनी जबान संभाल कर बोलो। मलून तुम हो, न कि खलीफा के सिपाही। मेरी क़यामत तो उस तरफ है। अपने ईमान की नुसरत के काबिल नहीं था मैं, जो मुझे कैद कर लिया गया। अल्लाह मुझे मौत दे दे। या अल्लाह मुझे मौत दे दे। मैं अपने मौला को बेहार और मददगार नहीं देख सकता। अल्लाह की तुम सब लोगों पर लानत हो जो मौला की बेकसी का तमाशा देख रहे हैं। तुम्हारी लानत तुम्हारे अपने ही साथियों पर पलटेगी। फिक्र मत करो, उन सब के नामों को मरने वालों की फहरिस्त में लिखूंगा। लानत हो तुम पर, अल्लाह की लानत हो तुम पर और मेरे चचाजादों पर, जिन्होंने मुझे इस अपना मुंह बंद रखो। क्यों मार रहे हो? इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? इसकी जुबान पर लान तान का विर्द है, नहीं सुना? अम्मारा को कहीं देखो तो उसे यहां भेज देना। अभी तक आप तक खबर नहीं पहुंची? क्या हुआ? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कह रहे हो अबू अजीज? ज़ोहर के वक्त मुझे खबर मिली। उसे किसने मैदान जंग की तरफ भेजा? उसकी लाश वहां मट्टी के टीले के पीछे से मिली है। तुम्हें लगता है मैंने इब्न ज़ियाद के जासूस से ऊंची आवाज में बात की है? मैं नहीं जानता। हुसैन की तरफदारी का मकसद हमें आजमाना था, ऐसा ही है। अमीर के जासूसों का तरीका वारदात कुछ भी हो सकता है, समझे या नहीं? अगर मैंने आवाज ऊंची की या तल्ख बोला तो वसातत कीजिएगा। ज्यादा मत सोचो, जाओ और अपना काम अंजाम दो। बेखौफ से हुसैन का दिफा करना तुम्हें किसी मुश्किल में न डाल दे। अमारा की मौत का सदमा है। बुरा आदमी नहीं था वो। सिक्कों की चमक ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। तुम ठीक तो हो? मैंने अमारा को आखिरी बार तुम्हारे साथ खैमे से बाहर जाते देखा था। जब तुम वापस आए तो बाजू पर खून का निशान था और दिल में इज़्तिराब। और अब अमारा की मौत की खबर मिली है। तुमने ये क्या किया कातिब आजम के फर्जंद? वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहा था। तुम्हें पहचान लिया? निशाने कातिब आजम देख लिया था। मेरी बात का यकीन करो, उसके कत्ल का इरादा नहीं रखता था, खामोश नहीं हो रहा था। खंजर निकाला और मुझ पर हमला कर दिया। मैं और क्या करता? अपने जुर्म का ढंढोरा मत पीटो। अम्मारा की कातिल की तलाश में है। नहीं जानता कहां फेंका है उसे। उसी टीले के पीछे जिस तरफ उसने इशारा किया था। मुझे यकीन है कि उनकी नजर में इस खैमे के सभी लोग मशकूक हैं। तो अब क्या करूं मैं? हो सके तो जंग की अफरा तफरी में ही यहां से भाग जाओ।
फिर इब्ने सबीख? अगर यहां रुके तो ना तो सिक्के मां तक पहुंचेंगे और ना ही उसका फर्जंद। अगर मैं चला गया तो बाप की विरासत से हाथ धो बैठूंगा। निशाने कातिब आजम मुझे दे दो, तुम्हारी अमानत इब्ने सबीर से ले लूंगा। इस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी है। कोई और राह हल सोचा है? अपनी जान बचाओ और अपनी मां के पास लौट जाओ। मेरे बाप की अमानत में खयानत न करना। अली की मोहब्बत का पहला दर्स ही अमानतदारी है। जो कुछ भी मैं इब्ने सबीर से लूंगा वो मेरे पास कातिब आजम की अमानत रहेगी। बेफिक्र होकर जाओ यहां से। कहाँ मिलोगे? जंग खत्म होने के 10 दिन के बाद शाम के दारुल खिलाफा में पहुंच जाना। वहां अबू नौमान को जानने वाले कम नहीं हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले ही कम मुश्किलात नहीं हैं तुम्हारी। तुम्हारा यहां रहना तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। जाओ। अब क्या हुआ? अम्मारा के कत्ल से अब तक मुझ पर कोई नजर रखे हुए है। कौन है वो? मेरे ख्याल में उसने देखा है। किसकी बात कर रहे हो? खेमे के इर्द गिर्द हाथ लगाकर मुझ पर नजर रखे हुए है। मैं उसे नहीं जानता। कोई सिपाही है? हाँ, कोई सिपाही है। वहम तो नहीं है? मैंने सुना है कि जब कोई पहली बार किसी इंसान का खून बहाए तो उसे अजीबोगरीब लोग नजर आते हैं। कहीं ऐसा ही तो नहीं? इससे पहले भी उसे देखा है मैंने। मुझे यकीन है यहां से निकलूंगा तो वो मेरे पीछे आ जाएगा। क्या करूं? रुक जाऊं या चला जाऊं मैं? क्या हुआ? उसने मुझे देख लिया। कोई काम ठीक से अंजाम दे सकते हो या नहीं? वो फरार होना चाहता है। किससे? अम्मारा की लाश मिलने की खबर उस तक पहुंच गई है। लाश मिल गई है क्या? किसी सिपाही को वहां से गुजरते हुए लाश मिली है। हानिया, आ रही हूं। क्या अब भी नजर रखूं उस पे? मुझे ये जानना है कि वो कौन है और क्या चाहता है। ये जख्मियों का खैमा नहीं है। सरदार का हुक्म है। सरदार का हुक्म है या अबू शुजा का जज्बा खिदमत? ये जनाब इब्ने कर्जा है और ये लश्कर के सरदारों में से है। कहाँ है? वो कातिबों के खेमे में है। उसका जख्म बहुत गहरा है। वहां पर क्यों? अपना मुंह बंद रखो और जल्दी आओ। नमाजियों पर तीर बरसाने का हुक्म तुमने दिया था। कौन सी नमाज? जिन लोगों को धोखा देने के लिए पड़ी?
सरदार लश्कर कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। हुसैन का फरेब सिपाहियों को मुतजलजल कर रहा था। तुम्हारा नाम मारे जाने वालों में दर्ज है। उसका नाम लिखा है। बाइस शर्म है ये नाम। मेरा एक भाई था अमरो इब्ने कर्जा। बिल्कुल सीधा साधा इंसान था। वो हुसैन के फरेब में आकर उसका शहदाई हो गया और खलीफा के दुश्मन के लश्कर में शामिल हो गया। उनमें से एक जो हुसैन की नमाज की ढाल बने। मेरा चलाया हुआ तीर भी उसके जिस्म पर लगा। हुसैन हम भाइयों के दरमियान में आ गया। फरेब देकर उसको भी जहन्नमी बना दिया। मैदान में जा रहा हूं अबू नमान। जंग का दोबारा आगाज हुआ है। अब बनी हाशिम मैदान में उतरेंगे। प्यास लगी है। सब कुछ कलम बंद कर लेना। प्यासा हूं। मैं किसी से कहता हूं कि पानी ले आए। अबू नमान, मेरे भाई का नाम वहां से मिटा सकते हो? बैद है कि ये तुम्हारी शर्मिंदगी का बाइस बने। हमारा काम ये है कि हकीकत तहरीर करें, न कि मसलहत। छोड़ दो उसे। उसे पानी क्यों पिला रही हो? नहीं देख रहे हैं कि वो कैदी है? कैदी है तो इतने जख्मों के बाद उसमें खून ही नहीं रहा। तुम्हारा उससे कोई सरोकार नहीं है। जनाब इब्ने कर्जा के जख्म से खून जारी है। पहले उन्हें देखो फिर वापस जाओ। अमीर ने सवार को अपने खैमे में बुलाया है। काश मुझे उसकी जान लेने देते और उसका सर मैं अमीर की खिदमत में ले जाता। जनाब अमीर ने उसे अमान दी है। खुदा की खातिर उसे ज़िबा कर दो। मुमकिन है जंग की इस अफरा तफरी में कोई फरमान पूरा न किया जाए। मैं एक सिपाही हूं और आप जिहाद करने के लिए यहां पर आए। अफरा तफरी तो दूर की बात, सूरे इसराफील भी फूका जाए तब भी अमीर की नाफरमानी नहीं कर सकता। नज़ाकत से काम मत लो। तीर को खींचो। हुसैन के लश्कर में कोई तीरंदाज बचा है? कसूर इब्ने सदीक का था। अगर वो गलती ना करता तो मेरा ध्यान मैदान से न हटता और मेरे पहलू में तीर न लगता। अब मैं इस तीर की वजह से जख्मी पड़ा हूं। इब्ने सबीक कूफी, क्या पता वो हराम खोर कहां से आया था। वो चाहता था कि नमाज के बाद लश्कर के सरदारों पर हमला कर दे और लश्कर इस्लाम की ताकत को नुकसान पहुंचाए। कर पाया? इससे पहले कि वो अपने इस बातिल मंसूबे को शुरू करता, मैंने उसे मार डाला। ए लड़की, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहाँ? उसके जनाजे पर
लगता है धूप में दिमाग खुश्क हो गया। क्या करूं? कहते हैं जो कुछ इब्ने सबीह के पास था सब सिपाहियों ने लूट लिया। और उसका घोड़ा वगैरह? खलीफा से खयानत करने वाला काफिर हरबी है और उसका माल हलाल है। ये लश्कर माल हराम से सैर नहीं हो रहा। वो हलाल को छोड़ेंगे। यहां रुकने से मेरा मसला हल नहीं होगा। लूट मार करना इस लश्कर का शेवा है। शायद उसके घर का पता चले। फजूल में अपनी जान गंवा बैठोगे। खुदा की कसम, फजूल में नहीं। ये विरासत मेरी और मेरी माँ की आखिरी उम्मीद है। अपनी अकल से क्यों काम नहीं लेते? हमारा का कातिल आया हो गया है। वो कातिल को ढूंढने में देर नहीं करेंगे। मैं वो अमानत लिए बगैर नहीं जाऊंगा। चाहे तुम्हारी जान भी चली जाए। जिस तीर अंदाज के तरकश में तीर खत्म हो जाए, उस निहत्ते को मौत से मत डराओ। लोग जंग में मसरूफ हैं और आप दोनों बहस में मसरूफ हैं। तुम जंग छोड़कर क्यों आ गए हो? जंग बस खत्म ही होने वाली है। हुसैन के पास गिनती के बस चंद साथी रह गए हैं। वो भी एक एक करके मारे जा रहे हैं। मैं जंग के लिए कुछ जरूरी सामान लेने के लिए आया हूं। वो मैदान जंग के हालात से बाखबर है। उससे इब्ने सबीह के बारे में पूछो। तुमने तो कहा था उसे लूट लिया गया। शायद कोई नई बात पता चले। इब्ने सबीह की कोई खबर है? जनाब इब्ने कर्जा ने उसे अबदी नींद सुला दिया। जानता हूं। उसके जनाजे का पूछ रहा हूं, कहां है? उसको नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट कर ले गए। यहां नहीं, बाहर घोड़े के पास। घोड़े के पास। इन सबको ले जा रहे हो? सबको तो नहीं, कुछ वहां पर भी रखी है, और अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें भी ले जाऊंगा। क्या सिपाहियों के लिए सिक्के भी हैं? हां, इस जंग में खलीफा खर्च से दरेग हरगिज नहीं करेंगे। हुसैन का काम तमाम हो गया? थोड़ा सा रुको, उन सब के सर नेजों पर देखोगे तुम। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं आया हूं ये नाल अपने साथ ले जाऊं अपने आखिरी फरीजे के अंजाम के लिए। मर्दों की तरह हुसैन से तलवार के साथ लड़ो। लाशों पर घोड़े दौड़ाना कोई बहादुरी नहीं है। हमारा काम हुक्म मानना है, चाहे वो तलवार से हो या फिर चाहे वो लाशों पर घोड़े दौड़ाना हो। पानी, थोड़ा पानी चाहिए। सिपाहियों को कितने सिक्के मिलेंगे? सब सिक्के नहीं लेंगे। उनमें कुछ ऐसे सिपाही भी मौजूद हैं जो हुसैन के कत्ल को खुदा की खुशनुदी का बायस समझते हैं। और बाकी के लोग? सरदार तो लेंगे ही, और जो हुकूमत के लश्कर का हिस्सा नहीं, उन्हें कोई नुमाया काम करना होगा। मेरा नाम अगर फहरिस्त में लिख दो और उसके साथ साथ कुछ मेरे बारे में भी लिख दो, तो क्या मुझे कुछ सिक्के मिल सकते हैं? हुसैन के मुकाबले में आना चाहते हो?
तुम क्यों हर बात को उसी तरफ ले जाते हो? मैं लश्कर के आखिर में खड़ा हूंगा। इस हजारों के लश्कर में जो तीर तलवार से मुसल्ला है, मुझे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कौन देखेगा? खुदाए हुसैन भी नहीं देखेगा तुम्हें। मैं लिबास जंग पहनूंगा ताकि कोई सरदार मुझे देख ले और मेरा नाम सिपाहियों की फहरिस्त में शामिल हो जाए। यही इब्न कर्जा मेरी तायद करे कि मुझे लिबास जंग में देखा तो काफी होगा। इस तरह खाली हाथ घर वापस नहीं लौटोगे। इस खानदान की सखावत और मेहरबानी को कौन नहीं जानता? हुसैन मेरी बेचारगी को देखकर मुझे माफ कर देंगे। मेरा बाप कहता था कि माफ कर देना अली का शेवा था। हुर को भूल गए हो? हुर ने हक की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दी। उसने हुसैन का रास्ता रोका। मैं सिर्फ जंगी लिबास पहनूंगा। अगर हुसैन ये जान ले कि चंद सिक्कों के साथ किसी मरीजा की जिंदगी बच सकती है तो इजाजत नहीं देंगे। तुम्हारा बाप यहां होता तो क्या करता? अभी तो नहीं है। उसकी आखिरी निशानी भी इब्ने सबीह के साथ ही नाबूद हो गई। कातिबे आजम ने खलीफा के माल पर ईमान को तरजीह दी। उसकी वसीयत पर अमल कर रहा हूं, जो मां की खिदमत में कोई कमी नहीं आने देता। तुम्हारे बाप ने मकाम व मंजिलत छोड़कर कम पर कनात की। मुझे और मेरी मां को अब वो कम भी नसीब नहीं। चाहते हो अब वो कमी खूने हुसैन से पूरी करो? नहीं, खुदा की कसम, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्या करूं? पानी। फुरात की आवाज सुनाई नहीं देती। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। खेमे में मौजूद सरदार जो जख्मी था अभी तक जिंदा है? तुमने खुद ही उसके जख्मों पर मरहम लगाया था। कहते हैं कि यहाँ और पानी नहीं बचा। मेरा नाम फहरिस्त में लिखोगे? याद करो मेरे बाप का, तुम पर कोई तो हक होगा। बेशक बड़ा हक है, लेकिन इस हक के अदा करने का ये मतलब हरगिज नहीं कि उनके बेटे का नाम यजीद के सिपाहियों में लिखूं। मैं चाहता हूं मेरा सिर्फ नाम लिख दो। ये इतना आसान नहीं है। किसी को गवाही भी देनी होगी कि तुम्हें देखा है। जंगी लिबास पहनूंगा, उनकी नजरों के सामने तलवार हमाइल करूंगा। फर्जंद अली के मुकाबले में सही नहीं कर रहे। क्या देख रहे हो? संदूक यहां पड़ा है। इसमें जंगी लिबास और ज़रा मौजूद हैं, पहन लो। जंग के लिए जा रहे हो? अगर हुसैन तक पहुंचो तो उस पर मेरी तरफ से जरूर वार करना। हुसैन के साथी मारे गए हैं। मैंने जब मैदान की तरफ निगाह की तो मुझे हुसैन के इर्द गिर्द मस्तूरात इकट्ठी हुई नजर आईं।
حسین نے اپنے سب بیٹوں کا نام علی رکھا ہے، جیسے اسے معلوم نہیں کہ لوگ کس قدر علی سے بغض و کینہ رکھتے ہیں۔ علی کا نام باعث بنا جو یہ سپاہی جوک در جوک شامل ہوئے۔ کاش یہ لشکر حق کی خاطر جمع ہوتا۔ حق ہمیشہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ ہے، چاہے وہ اب ہو یا گزشتہ خلفاء کا زمانہ ہو۔ علی کیا گزشتہ خلفاء میں سے نہیں تھے؟ آپ جو کہیں صحیح، علی سے بغض رکھنا غلط، لیکن خلیفہ کا بیٹا تو دین کا منکر ہو سکتا ہے۔ حسین نے اپنے نانا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، تم نے خود نماز کے دوران تیر چلانے کا حکم دیا۔ یہ کیسا مرتد ہے جو تیروں کے سائے میں نماز قائم کرتا ہے؟ اگر میرے جسم میں طاقت ہوتی تو یہیں پر تمہارا سر جدا کر دیتا۔ تم کیسے خلیفہ کے بھیجے ہوئے ہو جو حسین کی اس طرح سے حمایت کر رہے ہیں؟ علی اکبر حسین کے سامنے اتنا بےتاب کیوں ہے؟ یقیناً وہ ان سے جنگ کی اجازت طلب کر رہا ہوگا۔ حسین اس کی زندگی کے لیے فکر مند ہے۔ وہ ہم شکل پیغمبر ہیں، نظروں سے دور کیسے جانے دیں گے؟ حسین کا بڑا امتحان ہے علی اکبر سے جدائی۔ کیا علی اکبر مارا گیا؟ اس نے خوب جنگ کی۔ کاش میں میدان میں ہوتا اور علی اکبر کے غم میں حسین کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا۔ بہت اچھا ہوا کہ ٹوٹتے نہیں دیکھا۔ جب وہ ٹھہر ٹھہر کر علی اکبر کو میدان جنگ سے لے جا رہا تھا، خلیفہ سے جنگ کا انجام کامیابی مومنوں سے خدا کا وعدہ ہے۔ تو جنگ کے عہد میں اس کی بات الگ ہے۔ مومنوں سے خدا کا آخری کامیابی کا وعدہ ہے۔ ہر فاتح لشکر ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ حق پر ہی ہو۔ جو بھی ہے، خدا کفار کے لشکر کو کبھی غالب نہیں ہونے دیتا، کبھی نہیں۔ اس بیابان میں کفر کس طرف ہے؟ تمہارے لیے واضح نہیں ہے؟ حسین
खुदा के दीन से खारिज हो गया, दीन से खारिज शुदा काफिर है। हुसैन ने फकत खलीफा की बैत नहीं की, उसे काफिर मत कहो। तुम अपनी जबान से खलीफा का साथ दो। जुबान तो अक्ल की मातहत होती है, बात शऊर में पैदा होती है और जबान से जारी होती है। तुम्हारे दिल में खलीफा के लिए मेल है, झूठ बोलते हो कि खलीफा ने यहां भेजा है। आज मेरा दिल इख्तियार से बाहर है, जब मेरे हाथ में आएगा तो मारपीट कर इसे साफ कर लूंगा मैं। जख्म खुल गया है, यही जख्म मेरी जान लेगा। उसी लड़की को बुलाता हूं जिसने पहले जख्म पर पट्टी की थी। उठो। कुछ करो ताकि मैं हुसैन की मौत को देखने तक जिंदा रहूं। जिंदगी से दिल भर गया है। ये अकल के अंधे क्यों नहीं समझते कि हुसैन दीन से खारिज नहीं? उस मक्कार से बहस करने का कोई फायदा नहीं, बहुत चालाक आदमी है। अगर तुमने उस मक्कार आदमी से और ज्यादा बहस की तो वो तुम्हें आश्कार कर देगा और तुम्हारा राज फाश कर देगा। फजूल बातें मत करो यहाँ। फजूल नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम किसकी तरफ हो तो तुम्हारा खून मुबाह है। अगर जय इब्ने करजा कुछ समझदार लगता है, बस ये दुआ करो कि वो जिंदा न बचे। अगर वो बच गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहाँ? इब्ने करजा की पट्टी के लिए, उसके इलाज के लिए। ईमान जिसे छूकर भी नहीं गुजरा। और तुम्हारे अपने मुताबिक अगर जिंदा बच गया तो मुझे मार डालेगा या मेरा राज फाश कर देगा। अगर उसकी पट्टी न हुई तो और बुरा होगा। अगर बच गया तो कोई दूसरी राह निकालेंगे। उम्मे सईद, उम्मे सईद, मरहम पट्टी करने वाली लड़की को बुलाओ। नहीं पता कहाँ है। यहीं खैमे में वो गिरियाजारी करती रही और फिर कहीं चली गई। वो यहाँ नहीं है। तुम भी यहाँ से जा रही हो उम्मे सईद? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि कूफा के सिपाहियों का खौफ मुझे फरार नहीं होने देता। यहाँ से मुझसे जख्मियों के खैमे में जाने को कहा गया है। वहाँ उनके लिए खाना बनाना है मुझे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जख्मियों की तादाद बढ़ गई है, इसलिए इसे वहां के लिए बुलाया है। उमर इब्ने साद के सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों की कमी से फर्क नहीं पड़ता। डालूंगी, तुम्हें मार डालूंगी मैं। तुम ये खंजर नहीं देख रहे? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये सिपाही अगर यहाँ ना होता तो अपने ही लश्कर के हाथों मारा जाता। ये तेजधार खंजर कसास लेने आई थी। तुम मुझसे कसास लोगी? अपने बाप का कसास लेने आई थी। तुम्हारे बाप को क्या इसने कत्ल किया है? कौन खबीस था तेरा बाप? तुम्हारी जुबान भी तुम्हारे हाथ की तरह बेलगाम। अपने बाप के कातिल से। किस जंग में? आज इसी जंग के लश्कर में। तुम क्या इब्ने सबीक की बेटी हो?
तो वो तुम्हारी खातिर मरते वक्त जिंदगी की भीख मांग रहा था। अपना नापाक मुंह बंद रखो। खामोश, यहाँ चिल्लाओ मत लड़की। खाइन की नस्ल भी खाइन ही होती है। काफी नरमी बरत ली। लश्कर के एक सरदार की जान लेने की कोशिश की, सजा मौत है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ इसका खून क्यों बहाते हो? खेमे के बाहर इसका सर जुदा कर दो। शायद इस हमले के पीछे हकीकत कुछ और हो। तुम खेमे के बाहर इसे बांध दो। तुम्हारा बाप अली का पैरोकार था। मैं भी अली के चाहने वालों में से हूँ। मैं भी अली के चाहने वालों में से हूँ। जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचोगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। कुछ सिक्के हैं तुम्हारे पास? बस यही है मेरे पास। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बाप इब्ने साद के लश्कर में होगा। मजबूरी में आया था। और तुम? अपने बाप का ख्याल रखने के लिए। इस जंग में कोई मकाम मुसीबत से खाली नहीं। मेरा बाप लड़ने नहीं आया था। फिर क्यों वो जंग की अगली सफों में गया? जब से हम यहाँ आए बहुत परेशान था। परेशानी हुसैन के लिए? वो हुसैन का आशिक था। हुसैन की नुसरत के लिए मौके की तलाश में था। विरासत में उसने कुछ छोड़ा? लूटने आए हो? तुम्हारा बाप इसको जानता था? उसका खलीफा के जासूसों से कोई सरोकार नहीं था। ये जासूस नहीं है। ये कातिब आजम का बेटा है। वही जो कुछ अरसे पहले मारा गया। क्या कातिब आजम की कोई अमानत तुम्हारे बाप के पास थी? इसीलिए जब से आए हुए अपने सबीह को ढूंढ रहे हो। उस अमानत के बारे में कुछ जानती हो? वो उस अमानत को हमेशा अपने पास रखता था, और कल जब वो पानी लेने के लिए आया था तो उसने अमानत मेरे हवाले कर दी। कहा एक दिन कातिब आजम का बेटा वो अमानत लेने आएगा। अब वो कहाँ है? काश समझ जाती कि अमानत को खुद से दूर करने का मतलब था कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा। वो अमानत अब कहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो तुम ही हो? इस निशान को पहचानती हो? उसने कहा था कि निशाने कातिब आजम वो अपने साथ लाएगा। मेरे बाप की आखिरी निशानी और मेरे बाप की वसीयत। उस खेमे के किनारे पर जहां पर उम्मे हसन को बांधा था, वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है। उस पत्थर को हटाकर देखो, तुम्हारी अमानत वहीं पर दफन की है।
तुम हो बेटा, अब तुम्हारी बारी है। तकदीर ने फैसला किया है और अब तुम्हें मौका मिला है बेटा। आज दुनिया का आखिरी दिन है। आज सब आएंगे, आसमान और जमीन एक हो जाएंगे। जमीन में बेचैनी महसूस नहीं कर रहे बेटा हसन? ये नजरें दिखाई नहीं दे रही जो तारीकी में गुम है, दिन रात हम पर ध्यान रखे हुए हैं। कयामत का दिन है। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हानिया को जब कैद किया तो इसे बाहर निकाला फिर, ताकि किसी और के हाथ न लग जाए। बेटा तुम मुझे देख रहे हो? मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हारी अमानत में कोई खयानत नहीं हुई तो ये सब हानिया की बदौलत है। इसमें कोई शक नहीं। कातिब आजम का बेटा क्यों इस खतरनाक जंग में ये अमानत लेने आया है? मुझे पहचान गए हो? उसी वक्त जब तुमने अमारा का काम तमाम किया। डरो मत, किसी को नहीं बताया, यही वजह है कि तुम अभी तक जिंदा हो। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि हानिया को निजात दिलाओ तुम। उस खैमे के सिपाहियों का क्या करूं? हानिया जब यहां आई थी तो यह तय हुआ था कि वो और उसके बाबा हुसैन के पास जाएंगे। ये गैरत का तकाजा नहीं। मेरा इस लड़ाई से कोई सरोकार नहीं। मैं आया था कि अपने बाप की अमानत लेकर अपनी मां तक पहुंचा दूं। और मेरे यहां आने का मकसद यह है कि हानिया को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। अगर उसे निजात दिलाना चाहते हो तो मैं मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारी मदद पर कैसे एतमाद करूं? हाँ, जो महज चंद सिक्कों के लिए अपना नाम यजीद के लश्कर में लिखवाना चाहता है। तुम भी उसी लश्कर के सिपाही हो। मैंने ये जंगी लिबास इसलिए पहना था कि हानिया और उसके बाबा को हुसैन तक पहुंचा सकूं। अब तो वो नहीं रहे, खुद हुसैन के पास चले जाओ। फिलहाल मेरा मकसद सिर्फ हानिया की जान बचाना है, जिसकी खातिर मैं यहां तक पहुंचा हूं। यानी तुम्हारा हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं? और तुम्हारा ताल्लुक है? हानिया अपनी अमानतदारी पर कायम रही और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। सवार इब्ने मुनम कहाँ है? अबू शुजा उसे ले गया। जंग से कोई खबर? अली के बेटे अब जंग के लिए आने वाले हैं। अब्बास? नहीं, उसके भाई। वो भी मर्दे मैदान है, मगर अब्बास जैसे नहीं। हुसैन जब आए मुझे जरूर बताना। अली अकबर को दिखा था। हसन के बेटे को भी तलवार हमाइल करवा के जंग में भेजा। कासिम? हुसैन जंग में भेजने के लिए राजी नहीं था। कासिम के पास अपने वालिद की कोई तहरीर थी। हुसैन ने उसे पढ़ने के बाद इजाजत दी। उसके चेहरे पर तो अभी दाढ़ी भी नहीं निकली। उसे जंग का क्या इल्म? लश्कर वाले भी यही कह रहे थे। उसने बहादुरी से मद्दे मुकाबिल को ललकारा। उस तहरीर में क्या था? आज के दिन के लिए हसन की तरफ से अपने बेटे के लिए कोई पैगाम था। कोई भी सिपाही आसानी से उसका काम तमाम कर सकता था। अजरक शामी का भी यही ख्याल था। क्या वो खुद घोड़े पर सवार हुआ? पहले उसके बेटे जंग के लिए आए, मगर कासिम ने बहादुरी से एक एक करके सबको शिकस्त दे दी। लानत हो अजरक पर, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करने पर। अब खुद अजरक कासिम से लड़ने की तैयारी कर रहा है। कासिम मैदान में है अभी? पूरी बहादुरी के साथ ललकारते हुए मैदान में अपने चचा हुसैन की एक निगाह से उसका जोशो वलवला बढ़ जाता है। कासिम की लड़ाई को तहरीर करना जरूरी है। उठ जाओ। पहले दवात भर लूं, फिर मैं भी आ रहा हूं।
تمہارے باپ کی وراثت کہاں ہے؟ کہاں گم ہو؟ میں سمجھا شاید باپ کا خزانہ دے کر واپس چلے گئے ہوگی۔ صندوقچہ خالی تھا۔ خیانت کی ہے؟ میرے باپ نے خالی ہی دیا تھا۔ مجھے خود اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کاتب کی وراثت تحریر ہے، نہ کہ مال و زر۔ یہی چند جملے وراثت ہے میری۔ حسین کے ساتھ خدا کی غیبی طاقت ہے۔ ابو رافع نے کہا قاسم کے پاس اس کے باپ کا پیغام تھا۔ اس نے کہا وہ تحریر حسن کی وصیت تھی۔ اپنے قاسم کے لیے وراثت۔ والد اپنی اولاد کے لیے میراث چھوڑتے ہیں۔ حسن کی اپنی لکھی تحریر تھی، اس لیے حسین نے قاسم کو جنگ کی اجازت دی۔ بعض دولت چھوڑ کر جاتے ہیں اور بعض پیغام۔ اس طرح بعض اپنے باپ کے پیغام کے وارث بن جاتے ہیں، میری طرح، قاسم کی طرح۔ جو چیز قاسم کو جنگ کی طرف کھینچ لائی وہ اس کے باپ کی تحریر نہ تھی، وہ بیج تھا جو حسن نے اپنے بیٹے کے سینے میں بویا، جس نے آج پھل دیا۔ اور تمہیں کیا حاصل ہوا؟ اپنے باپ کے اس پیغام کا دل پر سنگین بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ تحریر آج ہی کیوں ملی، کیونکہ آج کا دن تو حسین کا دن ہے۔ کیا میں اسے پڑھ سکتا ہوں؟ یہی تحریر باعث بنی میرے باپ کے قتل کی۔ وحشی نے اچانک خنجر نکالا۔ اس کا جنگی لباس تو اپنے ہی لشکر کا لگتا ہے۔ جانتے نہیں ہو؟ عامر، ابو شجاع کے آدمی کو مار ڈالا؟ اس لڑکی نے دوبارہ مصیبت کھڑی کر دی۔ ابو شجاع کے غلام مرید نے تلوار چلائی ہے۔ کس پر؟ وہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اس کی رسی کھولنے والا تھا۔ رسی کھول رہا تھا؟ بہت جانے والے ہیں تمہارے۔ اسے جانتے ہو؟ ابو شجاع کے لیے کام کرتا تھا۔ اور اس کا عاشق؟ تمہاری زبان بند ہونے میں زیادہ وقت نہیں بچا ہے۔ تم پر خدا کی لعنت۔ غصہ آ گیا؟ اس کا یہ کام عشق نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس عرفات میں ابلیس بہت ہیں۔ ہے کاش میں بھی کسی ایک کو کنکر مار سکتی۔ ابلیس تم ہو اور تمہارا باپ ہے۔ اس کا منہ باندھ دو۔
اس کی بکواس سننے کا حوصلہ نہیں ہے. لشکر اسلام میں ایسے منافق اور خائن بہت ہو گئے. شور کیوں ہے؟ مارد میدان میں آیا ہے. مارد ابن سدیف ایک پہاڑ کی مانند ہے یہ شخص. وہ فقط عباس سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے. فقط ان دو کی لڑائی ہے. اب عباس کا کام تمام ہے. عرب میں اس کے مقابلے کا کوئی مرد ابھی تک پیدا نہیں ہوا. اس جیسے 70 بھی آ جائیں پھر بھی عباس کا مقابلہ کبھی نہیں کر پائیں گے. یا تم مارد کو نہیں جانتے یا جنگی مہارتوں سے واقف نہیں. 1 مہینہ پہلے کا واقعہ بھول گئے جب امیوں کی تلواروں نے نیام میں ہی شکست مان لی تھی؟ یاد آیا کچھ؟ کہاں؟ مکہ میں حج کے دوران انہوں نے احرام میں تلواریں چھپا رکھی تھیں اور حسین کو قتل کرنے کی در پہ تھے. عباس کعبے کی چھت پر گیا اور فصیح و بلیغ خطبہ دیا. کہا کہ اگر حسین نے نہ روکا ہوتا تو جس طرح ایک باز پرندوں کا شکار کرتا ہے بالکل ویسے ہی تم لوگوں کا شکار کرتا. پھر انہوں نے عباس کے خوف سے تلواروں کو نیام سے باہر نکالنے کی جرت ہی نہیں کی. بہت عجیب بات ہے. علی کے بیٹے نے مارد کو زمین پر گرا دیا. مارد مجبور ہو کر اپنے لشکر سے مدد طلب کر رہا ہے. لعنت ہو ان پر. ہمارے جنگجو مردوں کو اس بیابان کی دھوپ نے بزدل بنا دیا. مارد کا کام تمام ہو گیا. عباس جہاں سے جا رہا ہے سپاہی وہاں سے دور بھاگ رہے ہیں. کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ مارد کی مدد کو آئے. اس کی مدد کو کوئی نہیں پہنچ پائے گا. اس لشکر نے عربوں کی عزت خاک میں ملا دی. ازرق اور مارد. میں سمجھتا تھا کہ کچھ سپاہیوں کی جان گنوانے کے بعد حسین کی جان عباس مارد کا گھوڑا لے گیا. وہ مارد کا گھوڑا نہیں تھا. وہ گھوڑا حسن ابن علی کا تھا. مارد بن سدیف بہت فخر کیا کرتا تھا کہ جنگ جمل کے فاتح کا گھوڑا وہ اپنے ساتھ چرا کر لے آیا ہے. شاید یہ گھوڑا چاہتا تھا خود کو عباس تک لے جائے، ورنہ مارد میں عباس سے مقابلے کی جرت ہرگز نہیں تھی. زندہ ہے؟ موت نزدیک لگ رہی ہے. مرا نہیں ہے. کہو جہنم دور نہیں ہے. یہ لڑائی غروب آفتاب تک نہیں جائے گی. جانتا ہوں. تم کیا کرو گے؟ ابن زیاد کے سکوں کے لیے رکو گے؟ نہیں، اس کے لیے
क्या लिखा है कातिब आजम ने तुम्हारे लिए? सिर्फ मेरे लिए नहीं, तारीख के लिए है। तारीख का अहम बाब है। वो राज है जो अगर फाश हो जाए तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इसके बारे में मुझे इल्म नहीं था। मेरे पांव की जंजीर बन गया है, जैसे मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। यानी हमने जो कुछ सुना था वो एक हकीकत है। पैगंबर और उनके अहले बैत की मजलूमियत को छुपाया नहीं जा सकता। ये खत उसी मजलूमियत का तहरीरी सबूत है। अमीर शाम के सिपाही इसी खत की तलाश में थे। अभी भी तलाश में है। ये उन्हें रुस्वा कर देगा। यकीनन कातिब आजम की विरासत यही है। इसी की वजह से मेरा बाप बेचैन रहता था। जिंदगी के आखिरी दिनों में हमेशा अली और उसकी तन्हाई की बात करता था। आज की ये जंग अली की उसी तन्हाई का तसलसल है। हक कभी इस खानदान से जुदा होने वाला नहीं है। मेरे बाप ने अपनी जान और माल इसी हकीकत के लिए कुर्बान कर दिए। तुम इसी तरह तरद्दुद के शिकार रहोगे या इस पर यकीन लाओगे? इस औरत को क्यों बांधा है? उसकी वजह से। अभी जिंदा है? ये अभी बेहोश है। जंग से कोई खबर है? अब्बास और हुसैन दोनों ने मिलकर मैदान को तौबाला कर दिया। दोनों ने? लश्कर पर चढ़ाई? नहीं, पानी के लिए। जब अब्बास घोड़े पर सवार हुआ तो पानी की मश्क उसके बाजू पर नजर आई। हुसैन ने अब्बास को पानी लाने की इजाजत दी थी। जंग को ऐसे ही छोड़ाए हो? लड़ाई अब खत्म हो गई है। ये मंजर लिखना बहुत जरूरी है। अब्बास अगर एक बार सैराब हो गया तो ये जंग देखने के लायक होगी। मदीने का एक रहने वाला कहता है कि उसने कभी नहीं देखा कि हुसैन की लब खुश्क हों और अब्बास की लब तर। हुसैन से पहले पानी नहीं पिएगा। अगर फुरात पर भी पहुंच जाए? अगर ये बयाबान दरिया में तब्दील हो जाए तब भी हुसैन से पहले पानी नहीं पिएगा। बला के गम उठाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं, जफा के तीर खाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं। देखने के लायक थी। बहुत दर्दनाक और गमगीन है। इस बयाबान में दुख और तकलीफ के अलावा और क्या है? वो तीर जो मश्क पर लगा उसने अब्बास की जान ली। हाँ, देखा। बस यहीं दूर से? रंजो अलम दूर से ही देखना चाहिए। यानी अब्बास की मौत पर हुसैन की आह को नहीं सुना?
वो मंजर मैं नहीं भूल सकता। मेरा दिल गमगीन है। मेरा दिल भी बहुत मुस्तरब व परेशान है। हुसैन का अलमदार अब्बास था। कहां जा रहे हो? अभी आता हूं। मां की जान बचाने के लिए सिक्के नहीं चाहिए थे। कहा था कि फहरिस्त में नाम लिखो। अगर वापस न गया तो भी आसरा हो जाएगी। उस तरफ फकत हुसैन बच गया है। उसकी तलवार तुम पर वार नहीं करेगी। हुसैन की तलवार का खौफ नहीं है, मेरा डर कुछ और है। सामना करने का? अगर उसने मदद के लिए पुकार लिया तो? हुसैन का मदद मांगना इत्तिमाम हुज्जत होगा। यानी हक से फरार? चाहता हूं उस वक्त यहां पर ना हूं, बस यही। तो फिर इस हकीकत को तारीख के हवाले कर दो। अपने बाप की मीरास की हिफाजत करो। खामोशी से इस बयाबान से चले जाओ और ध्यान रखना खलीफा के सिपाहियों को इसकी खबर ना हो। और तुम? मैं यही हूं। हुसैन से अहद व पैमान और यजीद का दस्तरखान। मैं बस ये चाहता हूं कि इन दोनों को यकजा कर दूं। हक की आवाज तुम लोगों तक पहुंचाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हुसैन के साथ? हुसैन और हक में फर्क है। तुमने कहा था कि हक की खातिर जान और माल कुर्बान करने से दरेग नहीं करना चाहिए। इस जंग का फातेह कौन है ये वाज़ेह है। क्या ये बात आगाज में ही वाज़ेह नहीं थी? अगर मेरी जान हक और हकीकत पर फिदा हो जाए तो मैं समझूंगा मैं फातेह हूं। मैं मैदान जंग की तरफ जा रहा हूं। अब तो हुसैन बिल्कुल तन्हा है। तुम जाते क्यों नहीं हो? अब जाने की हिम्मत नहीं। रुकने का हौसला है? मैं परेशान हूं अपने बाप की मिरास और मुंतजिर मां के लिए। खुदा हाफिज। कहा जनाब हातिम फरार होना चाहते हैं, वो भी कातिब आजम की तहरीर के हमरा, वो जिसकी तलाश में खलीफा ने कोई भी जगह नहीं छोड़ी। डरो नहीं अबू नौमान, कोई नहीं जानता कि मैं खलीफा का जासूस हूं।
تمہیں کیا لگتا تھا کہ خلیفہ اس قدر اہم جنگ میں کاتبوں کے خیمے کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا؟ میری موجودگی میں جو کچھ ہوا وہ دیکھا بھی اور سنا بھی۔ جب میں یہاں موجود نہیں تھا اس وقت بھی خیمے کے اس سوراخ سے آگاہ رہتا تھا۔ کیا اب خیمے میں سوراخ کا معمہ حل ہو گیا جناب کاتب؟ عمارہ کے قتل سے صرف نظر، لیکن یہ تحریر خلیفہ کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ اپنی ماں کے بارے میں سوچو ذرا، شاید تمہیں عقل آ جائے۔ اپنی زندگی ضائع مت کرو، چلو۔ ابو نعمان، ابو نعمان، ابو نعمان، میں اپنی جان فدا نہیں کر سکا حسین کے لیے۔ ابو شجاع نے جو نال یہاں چھوڑی ہے وہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہو سکتا ہے اس طرح شاید حسین پر دوڑائے جانے والے گھوڑوں میں کچھ کمی آ جائے۔ جاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ میں بس التماس کرتا ہوں کہ ان گھوڑوں کی نالوں کو حسین کے بدن تک پہنچنے مت دینا۔ جاؤ جاؤ فرزند کاتب اعظم، جاؤ۔ چیخو پکار کی آواز تھی، ابن قرظہ تھا۔ امانت مل گئی تھی۔ ابو نعمان کو گہرا زخم لگا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کی مرہم پٹی کرو۔ کہاں جا رہے ہو؟ حسین کے لیے بے چین ہو؟ میرا باپ کہتا تھا کہ کاتب اعظم حق کے لیے بے قرار تھا، اسی نے اسے عاشق حق بنایا۔ حسین کو میرا سلام کہنا کہ ابن صبیغ نے اپنی کوشش کی لیکن نہ ہو سکا۔ میں جنگ میں نہیں جا رہا۔ کیوں؟ میں جنگ کی نیت سے نہیں آیا تھا جو اب جنگ میں جاؤں۔ کیا میرا باپ یہاں جنگ کی خاطر آیا تھا یا تمہارا باپ؟ کیا خود حسین کا یہاں آنا جنگ کی خاطر تھا؟ نہیں جانتا، صرف یہ جانتا ہوں کہ ابھی یہاں رکنا صحیح نہیں۔ تم جانتے ہو تم آخر ہو کس طرف؟ حسین کو ضرورت ہے، وہ تنہا ہے۔ ابو نعمان کی جان خطرے میں ہے، اس کی جان بچاؤ۔ بھاگنا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ حسن بیٹا نہ جاؤ، کچھ دیر اور رک جاؤ۔ کیا بچے کے رونے کی آواز نہیں سنی؟ اس جنگ میں بچے کا کیا کام؟ اس شور شرابے کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ حسین کی طرف سے آئی تھی۔ کوئی بچہ نہیں۔ اس کی آواز ایک دم سے رک گئی۔ حسین ہے اور کافی فاصلے پر کچھ خواتین جمع ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حسین خیمے کے پیچھے کھڑا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ بچہ ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ حسین پریشان ہے۔ رونے کی آواز اسی بچے کی ہوگی۔ جسے حسین نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ وہ شیر خوار بچہ تھا، اس کے لیے لشکر سے پانی طلب کیا۔ مجھے یقین ہے اس کے گریے کی آواز ہر کسی تک پہنچی ہوگی۔
मगर ये लश्कर वाले बहरे हैं। क्या हुआ हसन बेटा, जाने का इरादा नहीं? कोई मर्द नहीं बचा उस तरफ। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। अगर मुमकिन हो तो इस रस्सी को खोल दो। कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे हो? अब तो मुझे देख सकती हो, मैं हसन नहीं हूं। हसन को मैंने भेज दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि इन पस्त लोगों का साथ दे। अब तो वो चला गया। लोगों को हमारा पता चलेगा तो वो हमें जिम्मेदार ठहराएंगे। वो भाग जाने वालों पर लानत करेंगे। वो हसन के लिए होगी और तुम्हारे लिए होगी। अब पता चला मुझे कि तुम्हें क्यों बांधा हुआ था। जब हक से चश्मपोशी कर ली जाए, फिर हक के लिए बोलने को जुनून कहा जाता है, ताकि उनकी अक्लों की मुहार उनके हाथों में रहे। रुक जाओ। मेरे पास बाप की अमानत है, जिसकी हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। हुसैन से ज्यादा? जिसका कोई भी नहीं है? क्या वो हमारे पास पैगंबर की अमानत नहीं है? इस अमानत में खयानत ने कयामत बर्पा की है। जमीन और आसमान का गिरिया नहीं सुन रहे? मुझे जाना होगा, मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। मैं भी एक माँ हूँ और बेटे की मुंतजिर। काश हसन को मैं कभी न भेजती। मुझे क्या पता था कि हुसैन के साथ ये लोग ऐसा सुलूक करेंगे। मैं समझी थी हुसैन के सिपाहियों को मारेंगे, हुसैन बेअत कर लेंगे और मदीना चले जाएंगे। हसन को भगा दिया था ताकि उस लश्कर में ना रहे जो हुसैन को बेअत करने पर मजबूर कर रहा है। ऐ खुदा मुझे माफ कर दे, अब मुझे जिंदा नहीं रहना। हसन, आहिस्ता बोलो। उस वक्त से अब तक मेरी आंखों का गिरिया खत्म नहीं हुआ। हसन कहाँ हो बेटा, कहाँ हो बेटा? कयामत नजदीक है। आसमान और जमीन बेकरार है। अब वक्त है कि आसमान फटे और जौक दर जौक मलाइका जमीन पर उतरे। खुदा का अजाब नाजिल होने वाला है। भागने का कोई फायदा नहीं। जाओ हुसैन की मदद के लिए। क्या कोई मददगार है जो मेरी मदद करे? क्या कोई मददगार है? सुना तुमने? ये तो हुसैन की आवाज है। इस वक्त बेयार और मददगार है ज़हरा का लाल। क्या कोई दिफा करने वाला है जो हरम रसूलुल्लाह का दिफा वो करे? देखो, उन हजारों मुसल्लह सिपाहियों के सामने अकेला अभी भी डट के खड़ा है। क्या कोई अल्लाह का खौफ रखने वाला है जो हमारे बारे में अल्लाह से डरे? क्या कोई मदद करने वाला है जो हमारी मदद करके अल्लाह की अता का उम्मीदवार हो? यह आवाज कयामत तक सुनाई देगी, लेकिन इनको नहीं, इनके शिकम हराम से पुर है। कोई है जो हुसैन की मदद करे? ये रखो, ये अमानत है। ये अमानत उसके हवाले करना जो अहले बैत का सच्चा आशिक हो। ये क्या है? ये अहले बैत की मजलूमियत का तहरीरी सबूत है। इनाम और इकराम नहीं लेना चाहते? इन्हें जल्दी से छुपा दो। नाल लेने आया हूं। हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाने वालों की तादाद ज्यादा है। एक घोड़ा आपको भी ला दूं ताकि उन सिक्कों से आप महरूम ना हो। घटिया इंसान, गीदड़ भी तुम लोगों से ज्यादा वफादार है। जानते हो तुम लोग जिसका लाशा पमाल करना चाहते हो वो कौन है? रसूल खुदा का फर्जंद।
मुझे शक हुआ था कि खलीफा के जासूस नहीं हो, लेकिन गुमान में भी नहीं था कि हुसैन का पैरोकार शाम और कूफे के लश्कर में मौजूद हो। अपने ईमान का सौदा कितने में किया है? या हुसैन, बला के गम उठाए जा रहे हैं, बला